नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर वार। मैं हूं रमन पांडे। आज हम बात कर रहे हैं 2 दिन में यूपी के विकास के 20 सालों की तस्वीर खींचने के देश के सबसे बड़े प्रयास यानी यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 की। इस समिट में देश दुनिया के 40 से ज्यादा दिग्गज उद्योगपति तो आए ही हैं, 9 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। 2 दिन तक चलने वाली इस समिट के जरिए प्रदेश के 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान 900 MOUs साइन होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस समिट के जरिए 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 20 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन किया जा सके। आज हम बात करेंगे यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 के इन्हीं प्रयासों की कि कैसे मिलकर यूपी के विकास को रफ्तार दी जाए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे। ये जो समिट हो रही है, इसमें खास बात यह है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान रखा है। इसी तरह से कुमार मंगलम बिरला ने, इसी तरह से आनंद महिंद्रा ने, इन सब ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट की इच्छा जताई है। यानी इस इन्वेस्टर्स समिट के जरिए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता है। कैसे बन सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिबेट की और देखते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको वो बयान सुनवाते हैं। आज इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हुई तो सबसे पहले मुकेश अंबानी ने एड्रेस किया। मुकेश अंबानी ने कहा कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अडानी ग्रुप 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। इसके अलावा बिरला ग्रुप भी अगले 5 साल में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। टाटा की तरफ से बयान आया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेके बहुत ज्यादा उम्मीदें जाहिर की हैं। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि किसका क्या कहना था, उसके बाद डिबेट पर चलेंगे। Therefore, I am delighted to make 4 commitments today. First, Jio will invest another 10,000 crores in UP over the next 3 years. Second, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर नौजवान स्मार्ट नौजवान बने. Therefore, I am happy to announce that Jio will make available over 2 crore Jio phones in UP within the next 2 months on a priority basis. Third, Jio has already created over 40,000 direct and indirect jobs in UP. Fourth, Jio will establish a center for the 4th industrial revolution within a campus of a reputed university in Uttar Pradesh, working with the state government. And lastly, Pradhan Mantri ji, I have another wish and a commitment. गंगा नदी हम सब की माता है, हम सब के लिए पवित्र है. We at Reliance Foundation would deem it to be our pious duty to contribute to the success of this mission, and we are ready to execute whatever part of a project is assigned to us. If UP were to be a country, you would be the leader of the 5th largest country in the world. You are defining a new style of leadership in Uttar Pradesh. Your primary focus towards improving the law and order situations. What is needed to establish precondition for attracting investment in line with the Honorable Chief Minister's vision. We will invest in a world-class multidisciplinary university as well as a skill development center to provide talent to this region. All in all, across the different projects, we envisage an aggregate investment of rupees 35,000 crores in the state of Uttar Pradesh in next 5 years. तो आज यहाँ खड़े होकर मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं एक मुसाफिर हूँ जो इधर उधर भटक भटक कर आखिर आज घर लौट आया हूँ। यूपी के पास कई एडवांटेजेस हैं। It is a country with a larger population than any country in Europe or Africa. It has an abundance of natural resources. It has the largest railway network in India, and it offers great incentives for business.
We are also delighted to announce an investment in Varanasi, Uttar Pradesh's crown jewel, the oldest living city in the world. Club Mahindra will be executing an MOU with the government of Uttar Pradesh for a 200 crore investment to create a 200-room property, a timeshare resort in the Vindhya Varanasi circuit region, known for its spiritual significance and its cultural heritage. कि पिछले 11 महीनों के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। प्रदेश में शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी है, हमारी सरकार ने प्रदेश में उठाए हैं। मुझे ये बताते हुए लगता है कि देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जिन 99 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, उनमें 10 सिटी उत्तर प्रदेश के हैं। लखनऊ में मेट्रो का व्यावसायिक संचालन प्रारंभ हो चुका है। कानपुर, मेरठ और आगरा में मेट्रो सेवा की डीपीआर बनकर के तैयार हो चुकी है। वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी में मेट्रो परियोजना को केंद्र सरकार की नई नीति के अनुरूप संशोधित करने का कार्य वर्तमान में चल रहा है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उम्मीदों वाली बात है। ये इन्वेस्टर समिट 2 दिन में 20 साल के विकास का खाका खींचने की कोशिश है। देश दुनिया के 40 से ज्यादा उद्योगपति और जो भारतीय बिजनेसमैन हैं, जो भारतीय उद्योगपति हैं, जो लीडिंग बिजनेसमैन हैं, इन लोगों ने भी आज बहुत जोशो खरोश के साथ यहां पर इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं पर खुशी जाहिर करते हुए इन्वेस्टमेंट की बात कही है। और जाहिर सी बात है, 25 करोड़ की जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा इस लिहाज से भी है कि यहां पर हर तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए तो। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा दें दर्शकों से। मेरठ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। प्रदीप सिंह कांग्रेस प्रवक्ता लखनऊ से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तारिक सिद्दीकी सपा नेता, आप भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी का रुख करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, ये बहुत उम्मीदों वाली ये समिट है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को और सरकार को इस समिट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और जिस तरीके से लीडिंग बिजनेसमैन ने इसका स्वागत किया है और इन्वेस्टमेंट की बात कही है, तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता है, जैसा कि आप सबकी मंशा है, आप सबका मंतव्य है। गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी इस समिट में उपस्थित हैं। जी, उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है और प्रधानमंत्री जी ने अपने उस कर्तव्य का पालन किया है कि उत्तर प्रदेश से वो जनप्रतिनिधि हैं। इस नाते उत्तर प्रदेश के प्रति उनका जो विशेष कर्तव्य है वो उसका पालन कर रहे हैं। और मैं ये बात कह सकता हूं कि मैंने बहुत इन्वेस्टर समिट देखी हैं जी, जानकारी है मुझे। अब तक की इन्वेस्टर समिट में ये न भूतो न भविष्यति इन्वेस्टर समिट साबित होगी। यहां जो बात होगी वो उसको हमको पूरा करना होगा, पूरा कराना होगा, ये हमारा जिम्मेदारी होगी। और हाथ कंगन को आरसी क्या, 2019 से पहले आज इन 2 दिन की समिट में हुई घोषणाओं को लागू करने की जिम्मेदारी, कराने की जिम्मेदारी जो हमारी है उत्तर प्रदेश की सरकार की, उसमें हम सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। तभी हम जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि उत्तर प्रदेश विकास की तरफ है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ है और उत्तर प्रदेश में इस विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन होने वाला है। जी जी बिल्कुल। प्रदीप सिंह जी, आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इन्वेस्टर समिट हुई हैं, लेकिन कभी कभी कहीं भी ग्राउंड पे वो उसकी रियलिटी दिखती नहीं है, मतलब उतना डेवलपमेंट नहीं दिखता है, उतनी सारी चीज़ें नहीं दिखती जैसे कि गुजरात में या और भी जो प्रदेश हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुए हैं वहाँ दिखती हैं। रमन, देखिए, निश्चित तौर पर इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत एक उत्तर प्रदेश के नागरिक की हैसियत से, जिम्मेदार विपक्ष की हैसियत से हम इसका स्वागत करते हैं। देखना यह है कि इस इन्वेस्टर समिट में जो लोग आए हैं, जो एमओयू साइन हुआ है, वो आगे बढ़ पाता है या नहीं बढ़ पाता, ये सवाल जरूर है। सरकार को ये भी बताना चाहिए कि इससे पहले जो एमओयू साइन हुए हैं
वो कितने आगे बढ़े, उस पर क्या काम हुआ, ये भी सरकार को बताना होगा। निश्चित तौर पर वाजपेयी जी की बात से हम सहमत हैं। आज इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और मेरठ से बयान दे रहे हैं, हम उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं। हाँ, इस इन्वेस्टर समिट के को बहुत प्रबल और बहुत बढ़िया बताते हुए ये बताना भूल गए कि गुजरात में जो इन्वेस्टर समिट थी वो शायद कहीं कमजोर थी। ये बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते, ये खुद स्वयं बता सकते हैं। नहीं, ये उनके बयान का ये मतलब नहीं था। उन्होंने तो खुद ही कहा है कि सबसे बड़ा चैलेंज है और प्रधानमंत्री खुद उपस्थित हुए हैं इस इन्वेस्टर समिट में। इसे आप देखिए, तमाम ऐसे उदाहरण सामने मौजूद है। आप गाजियाबाद का उदाहरण ले लीजिए। गाजियाबाद में एमके मोदी प्रकरण पूरा हिंदुस्तान जानता है। वहां पर इसी तरीके से वहां पे उनको एक लैंड दी गई, वहां पे व्यापार, वहां के और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को वहां रोजगार मिलेगा, इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ उन्हें वहां लैंड दी गई। आज लैंड वैल्यू चेंज करके जिस तरह एमके मोदी वहां पर पूरी तरह घोटाला कर रहे हैं और एफआईआर पे एफआईआर होने के बाद भी इस सरकार में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थिति में देखना होगा जो एमओयू साइन हो रहा है वह क्या ईमानदारी से हो पा रहा है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि हमने ये इन 27 सालों में कोई आप बताइए कोई नई फैक्ट्री का लग कराई है? हमारे कार्यकाल में जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश को छोड़कर गई, जब हमारा कार्यकाल गया उससे पहले प्रताप ट्रैक्टर्स, डाला सीमेंट फैक्ट्री, यूपीडीपीएल, स्कूटर इंडिया, यूपीआईएल, अपट्रांस जैसी सारी कंपनियां थी और 100 से ज्यादा हमने गन्ना फैक्ट्री यहां पर लगाई। क्या उसके बाद कोई जो एमओयू साइन हुआ? अच्छा, एक बात बताइए, कुछ काम कर गन्ना फैक्ट्रीज आपने, शुगर फैक्ट्रीज लगाई, लेकिन सबसे ज्यादा जो भाजपा के शासनकाल को छोड़ दिए, सबसे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी और बसपा के शासनकाल में ही चीनी मिलें बिकी हैं। जी लक्ष्मीकांत जी। मेरा इतना कहना है प्रदीप जी को, शुरुआत तो अच्छी करी, लेकिन शुरुआत करते करते ये वो एकदम से विपक्ष की भाषा पर आ गए। अरे क्योंकि पिछला अनुभव इनका खराब रहा है, इसलिए ये समझते हैं कि ये इन्वेस्टर समिट भी उसी तरह से भेंट चढ़ जाएगी। मैं प्रदीप जी को बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि अभी इंतजार कीजिए, हमें तो बहुत कम समय मिलेगा। आज कल इन्वेस्टर समिट निपटेगी, 2019 के चुनाव में हमें जवाब देना होगा। बिल्कुल, अगर हम सार्थक जवाब देने की स्थिति में पहुंच जाएंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा। और तब प्रदीप जी से मैं पूछूंगा कि आज इनका क्या कहना है। अभी इस तरह की बातें कहना ये उचित नहीं है और विकास के नाम पर विपक्षी राजनीति ना करें, ऐसा मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक ईमानदार और वरिष्ठ नेता, हम आपका हृदय से सम्मान करते हैं और आपके दर्द को हम महसूस भी कर सकते हैं। आज जो स्थितियां आज इन्वेस्टर समिट में सारे लीडर राजधानी में है और मुझे कोई दर्द नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि इन्वेस्टर समिट हो रही है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज इन्वेस्टर समिट है, उसका बयान विकास के रास्ते पर बढ़ने की आज नींव रख रहा है। मुझे कोई दर्द नहीं है। अरे मेरे मेरठ को तो मेट्रो मिल रही है, हमें दर्द हो रहा है। मुझे कोई दर्द हो तो इलाज करा लो, आप एक ईमानदार दर्द हो तो इलाज करा लो, और नहीं दवा हो तो मुझसे ले लो, मैं आयुर्वेदिक चिकित्सकों में चूरन भेज दूंगा। बयान जारी कर रहा है, ये दर्द हमें हो रहा है, एक नागरिक कैसे से हो रहा है? मैं सही कह रहा हूं, मैं नागरिक नहीं, मैं एक जिम्मेदार राजनीतिक जागरूक कार्यकर्ता के नाते ये बात कह रहा हूं। दर्द आपको होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश विकास पर जाएगा, भाजपा की जय जयकार होगी। आप सब लोगों के सामने मुंह छिपाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। दर्द हो रहा है, हम ही को दर्द हो रहा है सर, क्योंकि आप मेरठ से ये बयान दे रहे हैं। अगर मुझे कोई दर्द नहीं है, दे रहे हो तो निश्चित तौर पर मैं दवा भेज दूंगा। भूमिका आपकी है, सुबह नौचंदी से पहुंच जाएगी। आइए सर, स्वागत है। नहीं, देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात यह है जो लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि इसको सचमुच इसको राजनीति से जोड़ के देखना ठीक नहीं होगा। दूसरी बात जहां तक लक्ष्मीकांत जी की है, सबको पता है कि लक्ष्मीकांत जी ने उस दौर में भाजपा का परचम लहराते रहे, ये जिस दौर में भाजपा की कोई जमीन नहीं थी यहां पर। मुझे याद है हमने कई बार बिठाया है इनको और अक्सर बातें हुई हैं। तो कंसर्न ये है कि ये मेरठ से बोलें या कहीं बोलें, इनकी जुबान से वही भाजपा ही निकलेगा। उनके जुबान से उनके को तोड़ते हुए हर व्यक्ति इनका सम्मान करता है। तारिक सिद्दीकी जी, ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के रास्ते पे कहां तक ले जाएगी? इसलिए कि जो बातें हुई हैं, मैं आपको कुछ उनमें से बता दूं। जैसे 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है रिलायंस का, मुकेश अंबानी ने ऐलान किया। अडानी ग्रुप 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसमें से वर्ल्ड क्लास का फूड एंड एग्रीकल्चर पार्क बनाएंगे। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, स्किल सेंटर्स, लॉजिस्टिक पार्क, इसके बारे में अडानी ग्रुप की तरफ से ये बयान आया है। इसके अलावा बिरला ग्रुप
बिरला ग्रुप ने भी 25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही है जो 5 साल में। इसके अलावा एसएल ग्रुप में आनंद महिंद्रा ने भी कहा है, टाटा ने भी कहा है कि जो टीसीएस का सेंटर लखनऊ से जो हटने वाला था वो नहीं हटेगा, वो रहेगा और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी होगा। 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा एसएल ग्रुप की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिला जुला के ये निश्चित रूप से बहुत चैलेंजिंग है कि 2019 में इलेक्शंस हैं और ये जो भी समिट हो रही है इसको कार्य रूप 1 साल में देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए रमन जी, ये बहुत अच्छी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आज भाजपा को कि एक अच्छी शुरुआत 11 महीने के बाद इस सरकार का शायद ये पहला काम होगा जिसको मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे डायरेक्शन में ये पहल हुई है। और जहाँ तक इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का समिट का कल्चर है, ये अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगरा में और मुंबई में हुआ और अच्छे काम को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो मुबारकबाद के काबिल हैं और हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। मसला यहाँ ये फंसता है कि जो अभी हमने मुख्यमंत्री जी का भी भाषण देखा, मुकेश अंबानी जी का भी भाषण देखा है जी, कोई नई चीज़ उसके अंदर हमको नहीं दिखलाई दी जो एक्साइट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये टाटा की इन्वेस्टमेंट की बात करें, HCL की कर लें, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की करें, जियो की करें, अडानी, LG, कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स, आइडिया के 500 करोड़, अमूल का 600 करोड़, ये 33,000 करोड़ का MOU जब हमारा मुंबई में हुआ था तो ये सारे लोगों का MOU हुआ था। वही बातें ये थोड़ा एक्स्ट्राप्लोड करके आज हो रही हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, देखिए सर्विस इंडस्ट्री का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक रनिंग प्रोसेस है। महिंद्रा ने बोला है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे यहाँ पे। अच्छा कदम है, उसमें हमारे यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट समिट तक अगर ये बात 2 दिन अगर लखनऊ चमका, अच्छा लगा, कम से कम 2 दिन चमका। अगर ये इससे पहले नहीं चमका था, बाद में कम से कम ये स्प्रेड मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जो भी MOU आज साइन होगा, कोई भी इन्वेस्टर हवा में 2 दिन के पोस्टर्स, बैनर और क्यास देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मौजूद हैं, माहौल बना हुआ है, लोग कमिट कर रहे हैं। ये जमीन पे तब उतरेगा जब 2 चीजों का ख्याल कम से कम करना पड़ेगा आपको, सरकार को। एक तो लॉ एंड ऑर्डर को एब्सोल्यूट इंप्रूव करना पड़ेगा। जो पिछले 11 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भयावह है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। दूसरा आपको ये करना पड़ेगा, सरकार को खुल करके, हमको योगी जी के भाषण में आज ये सुनना था कि आप प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को आप इस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए सारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस सिंगल विंडो सिस्टम बनाया हुआ है। आज लेकिन उसकी डिटेलिंग नहीं हुई। देखिए मैं डिटेलिंग आएगी इसलिए कि आज अनाउंसमेंट हुआ है। चलें वो मैं देखूंगा, तब आपसे बात होगी। फिलहाल नहीं हुआ है। जो दूसरी चीज जो मुख्यमंत्री के भाषण में देख रहा था, जैसे हर शहर में एक प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश 18 इकोनॉमिकल हब का स्टेट ये है ही है। भदोही में कारपेट बनेगी, अलीगढ़ में ताला बनेगा, फिरोजबाद में चूड़ी, ये हिस्टोरिकल था। ये डाई कर रहे हैं। 7,778 MSME और SMEs जो हैं बंद होने के कगार पे खड़ी हैं। उनके रिवाइवल के पैकेज का आज अनाउंसमेंट होना चाहिए था। मुख्यमंत्री के भाषण में ग्राउंड की जो रियलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं दिखलाई दी है। मैं ऑल द बेस्ट कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी नागरिक हूं। उत्तर प्रदेश ग्रो होगा, हमको फायदा होगा। 5 साल में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस प्रदेश को डेवलपमेंट के रास्ते पर रखा है, जिस तरीके से हमारे MOU धरातल पे आए हैं, अमूल से लेकर के सारी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अगर वो कंटिन्यू रहे, हमारे नौजवानों को नौकरी मिले, आई सैल्यूट। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन उसमें उस समय भी कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हुए थे, कुछ एक डील्स ऐसी हुई थी जो बिल्कुल विवाद में रही। जैसे आप अंबानीज का जो ग्रेटर नोएडा में जो इन्वेस्टमेंट का जो उनका प्लान था, कुल मिला जुला के ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लक्ष्मीकांत जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पहले भी जैसा कि सपा के नेता बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए समिट्स हुई थी, अखिलेश यादव ने कराई थी, लेकिन वो ग्राउंड पे उतरी नहीं। वो ऐसा दिखा नहीं कि कुछ बहुत सारा चेंज हुआ है। तो यानी कि ये निश्चित रूप से बहुत चैलेंजिंग काम होगा कि जो लाल फीताशाही है या जो ब्यूरोक्रेसी का जो लॉन्ग प्रोसीजर है उसको तोड़ते हुए यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करते हुए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कदर डेवलप किया जाए ताकि चीजों का प्रतिफल दिखाई दे। मैं सिद्दीकी जी की एक बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी पे अंकुश लगाना होगा और उसको अपना खेल खेलने से रोकना होगा जी। उसको बाध्य करना होगा कि जो शासन की नीति है उसके अनुसार मिनट टू मिनट का कार्यक्रम बनाकर उसी मिनट में पूरा करो, और नहीं पूरा करो तो जाओ। शासन का उद्देश्य की प्राप्ति होनी है, यह एहसास और संदेश देना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी को।
दूसरी बात यह है कि जो कानून व्यवस्था की स्थिति में क्रमशः सुधार है, उस गति को और बढ़ाना पड़ेगा जी। मैं इससे सहमत हूं, लेकिन जहां तक अखिलेश यादव जी की इन्वेस्टर समिट हुई थी जी, उसमें भी सर्विस सेक्टर में यूनिवर्सिटी खुलेगी, अस्पताल खुलेगा, इस प्रकार के एमओयू थे। आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, इस पर वो कम ध्यान हो पाया था या उस पर आगे कार्रवाई कम हो पाई। बिल्कुल ठीक ये बात है। निश्चित चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि पिछले एमओयू जितने हुए हैं यदि वो कंटिन्यू होना चाहते तो उन्हें भी कंटिन्यू करे, और नए एमओयू को जितना हिसाब से जितनी गति से चलना उसको और तेज गति से चलाए, यानी 2019 तक जो अपेक्षित परिणाम हमको देना है उससे कहीं अधिक परिणाम हम दें। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का विकास भी होगा, उत्तर प्रदेश विकास से युक्त होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, बेरोजगारों को एक सुनहरा भविष्य दिखेगा और राजनीतिक तौर पर भी हमारा फायदा होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है प्रदीप सिंह जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जो भी बिजनेसमैन आता है वो उसका बिजनेस, उसका इन्वेस्टमेंट का पर्पस यही होता है कि उसका अपना भी फायदा हो, इसलिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट तभी होता है जब उस इन्वेस्टर को फायदा भी होता है। जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके सरकार को देना पड़ेगा ताकि उसको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिटर्न का, उसको वापस आने का एश्योरेंस मिले। इसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने? रमन देखिए, कोई भी व्यापारी या उद्योगपति जब कहीं इन्वेस्ट करता है तो तीन चीजों को महत्वपूर्ण स्थिति में देखता है। नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 2 परिवहन व्यवस्था, नंबर 3 बिजली, नंबर 4 पानी जी। इन चारों स्थितियों में उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है ये सरकार को देखना होगा। लॉ एंड ऑर्डर पे पिछली सरकार से ज्यादा स्थिति खराब है, भयावह स्थिति। अभी 15 दिन पहले तक लखनऊ 1 महीने तक लगातार चंबल बनी रही, राजधानी चंबल बनी रही है। ये भी उत्तर प्रदेश और नहीं पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। मतलब सरकार को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, इनके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। आप इतना ही नहीं हो रहा है, आप बताइए परिवहन की जब आप बात करते हैं, सड़कों पे इन्होंने कहा था कि सारे गड्ढे भर जाएंगे। आप राजधानी छोड़ दीजिए, राजधानी से अलग हटके किसी भी जनपद में जाइए, पूरा का पूरा जनपद गड्ढों से भरा पड़ा है। चलिए अभी देखिए, अभी पानी की व्यवस्था क्या होगी, बिजली की व्यवस्था, अभी एक साल, अभी गवर्नमेंट को 1 साल नहीं हुआ, अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए, इतनी जल्दबाजी। जी जी, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट रिएक्शन तारिक जी, लास्ट रिएक्शन। मैं रमन जी सिर्फ एक बात मैं कहूंगा कि बात ठीक है, सरकार को 1 साल हुआ, बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट होता है डिलीवरी वर्सेस कमिटमेंट। जी, सरकार जो कमिट कर रही है कि हम 15 जून तक सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, नहीं करते हैं हम, कमिटमेंट आपका वो हो जो आप अचीव कर सके। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बेसिक वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराएगी और ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में बहुत सार्थक कदम होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रदीप सिंह और तारिक सिद्दीकी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार। सबके मन को भाए राजेश मसाले, राजेश गुलाब जामुन और पापड़। इस प्रोग्राम के सह संयोजक हैं MMR ग्रुप, बिल्डिंग बियॉन्ड एक्सीलेंस, शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ, सबके मन को भाए राजेश मसाला, पापड़ और गुलाब जामुन।